ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، تفصیلی خبروں سے پہلے آج کی 3 بڑی خبریں۔ علی امین گنڈاپور کی مسلسل دھمکیاں، کیا دوبارہ لشکر کشی ہوگی؟ یونان میں ایک کشتی الٹ گئی، متعدد لاپتہ، 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا۔ اور کل راول پنڈی، اسلام آباد اور لاہور کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ملک میں جہاں ایک طرف موسم کا درجہ حرارت کم ہوا ہے، وہیں سیاسی درجہ حرارت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج پھر سول نافرمانی کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سول نافرمانی پر بانی کے فیصلے پر عمل ہوگا۔ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو دوسری اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے۔ پھر تو اگر فقدان یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں، ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار ریجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے، اور وہ اسٹن کے ریٹ بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ آنسو گیس تو اب ایک کپ بن گئی ہے ہمارے لیے، آنسو گیس تو ہمارے لیے وہ پرفیوم بن گیا ہے، ہوتا ہے نا پرفیوم باڈی اسپرے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے۔ اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے کفن کا کہا تھا، ہم اپنے لوگوں کو کفن میں لپیٹ کے لائے ہیں۔ ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی جو ہمارے مسنگ ہیں اس میں ہماری شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے، ان کی میتیں ہمیں نہیں دی جا رہی۔ اب تک 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں۔ گنڈاپور نے بیان دیا تو رد عمل بھی آیا۔ بائیکاٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیڈر کا کریں، آپ صرف بڑھ کے مار سکتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا جواب، کہتے ہیں یہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور دوڑ لگواتے ہیں، جس ادارے کے حدود میں کارروائی کریں گے وہ ادارہ ایکشن لے گا۔ اگر فوجی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا تھا تو سب سے پہلے ابانی چیئرمین پی ٹی آئی کا کرتے ہیں نا، سب سے بڑی پروڈکٹ تو وہ خود تھے۔ علی امین گنڈاپور نے کل کہا کہ اب اگلی کال جو ہے وہ پرامن کال نہیں ہوگی۔ آپ کی کون سی کال پرامن تھی؟ آپ میں الحمدللہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اگلی کال دے سکیں یا اگلی کال پر عمل پیرا ہو سکے، اور بڑھ کے مارنا کہ میں جی فلاں کر دوں گا، ڈھمکاں کر دوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تشدد پہ اکساتے ہیں اور اس کے بعد یہ دوڑ لگا جاتے ہیں اور کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ آپ ریلوے میں سوار ہوں گے، جرم کریں گے، اس کو ریلوے پولیس پروسیکیوٹ کرے گی۔ آپ ایئرپورٹ کی پریمیسز میں کوئی جرم کریں گے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کو پروسیکیوٹ کرے گی۔ آپ اگر فوج کے خلاف کچھ کریں گے اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں گے تو اس کو فوج پروسیکیوٹ کرے گی۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ ایک صوبے میں حکومت کرنے والی پارٹی بار بار وفاق پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ پاکستان کو نفرت، گالم گلوچ اور افراتفری کی سیاست نکال کر خدمت اور بھائی چارے کی سیاست کی طرف لے جانا ہوگا۔ ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی ہے تو 3 مرتبہ جو ہے وہ وہاں سے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے۔ یہ کوئے توئے اور گالی گلوچ، احتجاج، افراتفری، انارکی کی سیاست جو ہے اس کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں بالآخر خدمت کی سیاست جو ہے اسی کا جو ہے وہ نام ہوگا۔ اب ذکر مدارس بل کا، جس پر مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری کے درمیان تنازع برقرار ہے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں بل پر ایوان صدر کے اعتراضات فیٹف سے جڑے ہیں۔ عطا تارڑ، آئین، قانون اور پارلیمنٹ کے احترام کا درس نہ دیں۔ بیرسٹر عقیل نے تسلیم کیا ایوان صدر نے فیٹف کا ذکر کیا ہے، بتایا جائے غلط بیانی کرنے والا کون ہے۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، نہ ہی آئندہ بھی بنے گی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ حکومت سے تحفظات تھے، مذاکرات جاری ہیں، تمام سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے کے 3 واقعات میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہیں، جبکہ 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ سنہرے مستقبل کا سپنا ٹوٹ گیا، خواب سراب ثابت ہوئے۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتیاں ڈوب گئیں۔ یونانی حکام کے مطابق جنوبی جزیرے گاؤدوس کے قریب کشتی حادثے کا شکار ہو گئی، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یونانی حکام کے مطابق اس حادثے میں ایک مال بردار بحری جہاز نے 39 افراد کو بچایا، جن میں سے بیشتر پاکستانی ہیں، جبکہ متعدد افراد بھی لاپتہ ہیں۔ کشتی میں 80 سے 100 افراد سوار تھے۔ یونان میں ہی جزیرہ گاؤدوس کے قریب ایک اور واقعے میں لیبیا سے روانہ 47 تارکین وطن کو ریسکیو کر لیا گیا۔
यूनान के जनूब में एक और कश्ती हादसे के बाद 88 तारिकीन वतन की जिंदगियां बचा ली गईं। दफ्तर खारजा पाकिस्तान से जारी करदा बयान में कहा गया कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यूनान के जजीरे क्रेट के जनूब में कश्तियों के उलटने के वाकयात हुए, जहां बहाक अफराद में एक पाकिस्तानी, बचाए गए अफराद में 47 पाकिस्तानी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि इस मरहले में हम हलाक या लापता पाकिस्तानी शहरियों को सही तादाद की तस्दीक नहीं कर सकते। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया है। सेल रेस्क्यू अफराद और उनके अहल खाना के दरमियान राब्ते का किरदार अदा कर रहा है। सेल ने मुकम्मल मालूमात के लिए यूनानी हुकूमत के मुतालिका इदारों से राब्ते में है। हालिया कश्ती हादसे पर तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। माजी में भी कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में मुतअद्दिद पाकिस्तानी जानों से हाथ धो चुके हैं। फरवरी 2023 में कश्ती डूबने से जाम बहक होने वालों में साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थीं। इंसानी स्मगलर्स के झांसे में हर साल सादरों अफराद फंस जाते हैं। हर साल कश्ती उलटने के वाक़यात होते हैं और दयारे गैर में लोग समंदर की ग़िज़ा बन जाते हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, मगर कुछ अरसे बाद इंसानी स्मगलर्स धंधा दोबारा शुरू कर देते हैं। अब तक इंसानियत में सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी जान गंवा बैठे हैं। 14 जून 2023 को लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती को यूनान के साहिल के करीब हादसा पेश आया, जिसमें 288 पाकिस्तानियों समेत 800 अफराद जाँ बहक हुए थे। 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया था। 1 मार्च 2023 को लीबिया में कश्ती उलटने से 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 26 फरवरी 2023 को इटली के साहिल पर कश्ती डूबने से 63 से ज़ायद पाकिस्तानियों की अमवात हुई। जाँ बहक होने वालों में साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। मरियम नवाज ने बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए। मुख्तलिफ शोबों में अहम मुआहिदे भी किए गए। रिपोर्ट देखिए। पंजाब मरियम नवाज का कामयाब दौरा चीन मुकम्मल। पंजाब में मुआशी तरक्की और आलमी शराकत दारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ़। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों से गोभी पार्टनर्स ने पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान कर दिया है। गोभी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे का मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देना है। गोभी फंड का मकसद पंजाब को एक पायदार और डिजिटल मईशत की जानिब ले जाना है। चीनी कंपनी सोलर N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत हुए। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस इलामिया के मुताबिक टैक्स छूट, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स और दीगर सहूलतों की वजह से पंजाब सरमायाकारी के लिए मिसाली है। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मनसूबों पर काम करेगी। सोलर N+ पंजाब में सेंटर के क़याम, स्टडी, कैपेसिटी बिल्डिंग, जदीद सोलर टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने के लिए काम करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे के दौरान चाइना की हुक्मरान जमात के आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से मुख्तलिफ IT कंपनियों के वफूद से मुलाकातें की। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, शोबा सेहत की तरवीज के लिए चाइनीज़ कंपनियों से मुआहदों पर दस्तखत हुए। कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 16 दिसंबर को तालीमी इदारों में होने वाला पर्चा भी मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में स्कूल सानिया APS पेशावर की याद के बाइस बंद रहेंगे। लाहौर में भी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस सानिया APS के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए बंद रहेंगे। स्कर्दू में रोंदो मलूपा के मकाम पर गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई है। पहाड़ी तोदे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी स्कर्दू से शेंगोस जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। मलूपा हादसे में जाँ बहक 5 अफराद में से 4 का ताल्लुक स्कर्दू जबकि 1 का ताल्लुक गिलगित से है। एक और ट्रैफिक हादसे पर बात करें तो मुजफ्फराबाद की वादी नीलम में जीप हादसे में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में माँ, बेटी और बेटा शामिल है। हादसा कील के करीब मारगला के मुकाम पर पेश आया, जहाँ शारदा जाने वाली मुसाफिर जीप बर्फ़ और फिसलन के बायस ड्राइवर से बेकाबू होकर ज़ेर तामीर पन बिजली घर के अहाते में जा गिरी। जीप में शारदा के रिहायशी एक ही ख़ानदान के 10 अफराद सवार थे।
बार खान रखनी नेशनल हाईवे रोड के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस से ट्रक में आग भड़क उठी है। ट्रक मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। ड्राइवर ने ट्रक आबादी से निकालकर मैदानी इलाके में ले गया, जिससे मुकामी आबादी जानी और माली नुकसान से बच गई। लोगों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पा लिया। जिला इंतजामिया की जानिब से आग को बुझाने के लिए कोई खातरख्वाह इकदाम नहीं किए गए। हब में भुआनी के करीब डीजल के टैंक में वेल्डिंग के दौरान धमाके से 2 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को जाम गुलाम कादिर अस्पताल मुंतकिल किया। फैसलाबाद से खबर दें कि फैसलाबाद में घर में आतिश ज़दगी से एक खातून झुलसकर जान बहक और 2 बच्चियां शदीद ज़ख्मी हो गईं। रेस्क्यू के मुताबिक घर में वाक़या बिजली के खंभे के करीब खातून गीले कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी कि स्पार्किंग के बायस आग भड़क उठी है, जिससे पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पाया। 38 साला सिदरा मौके पर झुलस कर दम तोड़ गई। ज़ख्मी बच्चियों में 8 साला नूर फातिमा और 3 साला हिना शामिल हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन नहीं, पीपल्स पार्टी की साजिश थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के लफ्जी वार कहा, हुकूमत से अलहदगी की बात MQM की नहीं अपने बारे में थी। खालिद मकबूल ने लफ्जी वार किए तो वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं वाटर बोर्ड, KMC और दीगर इदारों की बर्बादी के पीछे MQM है। ये किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर रहे हैं। मजीद कहा, बानी PTI नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। पाराचना टुलमेन शाहरा गुज़िश्ता 2 माह से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसके बायस अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई भी मुअत्तल है। पाराचना शहर में अशिया खुरनोश, अद्वियात, LPG, लकड़ी समेत दीगर चीज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सहूलियात के फुकदान के बायस अस्पतालों में नमूनिया से 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं। रास्तों की बंदिश के बायस अक़लियती बिरादरी भी मुश्किलात का शिकार है। ईसाई बिरादरी के अफराद का कहना है कि दिसंबर हमारी खुशियों का महीना है, लेकिन रवा साल हम खुशियाँ नहीं मनाने सके। पेशावर में तकरीब के दौरान तहरीक इंसाफ तहसील मथुरा के चेयरमैन इनामुल्लाह को पार्टी वर्कर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कारकुनान खाने पर भी गुत्थम गुत्था हो गए। बदनज़मी के दौरान इनामुल्लाह कारकुनों के जद में आ गए। वर्कर्स ने एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों की बारिश कर दी। और अब बात वज़ीर आज़म की, तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वालिदैन मुहिम में वर्कर्स के साथ ताउन यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में इंसदादी पोलियो मुहिम के तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ पोलियो के खात्मे की मुहिम में शराकत दारी पर बिल गेट्स फाउंडेशन, आलमी इदारा सेहत और सऊदी अरब समेत आलमी इदारों के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुख्तार भट्ट और आयशा रज़ा फ़ारूक की निगरानी में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे की ये जंग हम जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिद्दीक अल फारूक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। स्वात के सयाती मुकाम आलम जब्बा में बर्फबारी के बाद मसनूई स्केटिंग ट्रैक तैयार कर लिया गया, जहां सयाहों का रश उमड़ आया है। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक जा गिरा। उन्जा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली और बाग के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहा। सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर हो गए, जबकि वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी के बाद रास्तों पर फिसलन है। लाहौर में सर्दी में मजीद इजाफा हुआ तो अवाम कश्मीरी चाय का लुत्फ उठाने के लिए टी स्टॉल्स पर जा पहुंचे। मजीद तफसील जानते हैं, आज उसके नुमाइंदे हसन अवान हमारे साथ हैं। हसन अवान, बताइएगा इस मौसम में सर्द के अंदर लोग किस तरह कश्मीरी टी को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है वो गर्म मलबूसात के साथ साथ गर्म गर्म पकवान के भी खूब जो है वो मज़े उड़ाते हैं। मैं हम कश्मीरी चाय पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो शहरियों की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और चाय से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कैसा लगा कश्मीरी चाय पीकर आपको? क्यों दीगर चाय अच्छी नहीं होती, कश्मीरी में ऐसा क्या टेस्ट है? इस
کے لیے دیکھیے ہم اتنی دور سے آئے ہیں کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے جیسے ہی موسم سرما سٹارٹ ہوا ہے تو ایک عجب قسم کا لطف اندوز نظر آ رہا ہے ہر چیز میں، کیونکہ اتنی لاہور میں گرمی کی شدت تھی اور اس موسم کو تو اب ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ رات کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے اور یہاں پر نہ صرف فیملیز یہاں پر بیٹھ کر صرف چائے کو انجوائے کرتی ہے بلکہ اپنے ساتھ ڈسپوزیبل گلاسوں میں لے کر گھر میں بھی جا کر اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی جھل مکسی جیپ ریلی میں مکسی فیملی چھا گئی۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق پروفیشنل کیٹیگری میں جعفر مکسی نے پہلی پوزیشن حاصل کی، انیس مکسی کا دوسرا اور نادر مکسی کا تیسرا نمبر رہا۔ دفاعی چیمپئن شادی خیل اور صاحبزادہ سلطان کی گاڑی خراب ہونے کے باعث ریس سے باہر ہوئے۔ آج 9 بجے اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے آج نیوز۔